So now that we are done with chemical bonding and this worksheets that I have given you, make sure कि वो आप जरूर कर लीजिएगा and कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें. So it's Okay, a sir. cliff. इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं ना, अगले 5-6 चैप्टर्स, they'll be a breeze. They'll be really easy to do. So we'll start with the first easy topic today, and that is states of matter. States of matter में हमारे पास सबसे पहले आइडिया आता है कि काइनेटिक थ्योरी क्या होती है. And if you talk about states of matter from O levels, तो उसमें हमारे पास दो ही states हैं जो मैटर करती हैं. एक है कि आपके पास गैस है और एक है आपके पास सॉलिड है. क्यों? पार्टिकल्स एक में बिल्कुल फ्री हैं और एक में बिल्कुल साथ साथ हैं, बिल्कुल ही फ्री नहीं है. एक में पार्टिकल्स आर मूविंग अराउंड रैपिडली, एक में बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहे. एक में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, एक में बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. एग्जैक्ट ऑपोजिट सॉलिड एंड गैस और लिक्विड समवेयर इन द मिडल. तो अगर हमें गैस की समझ आ जाए ना तो दैट इज वन एक्सट्रीम, तो हमें सॉलिड उसके ऑपोजिट समझ आ जाएगा. सो वील जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गैसेस का बिहेवियर क्या है, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड गैस वी नो कि एग्जैक्ट ऑपोजिट बिहेवियर सॉलिड का हो जाएगा. सो हाउ एग्जैक्टली डज अ गैस वर्क? So the first assumption that we have, so this whole theory is going to work on some assumptions. These are not just random assumptions. We give them a fancy name, postulate. कि ये बहुत जबरदस्त through time and again experimentation के through हमने इनको prove किया हुआ. So we'll start with an ideal gas, and a gas that we have just imagined कि इस तरह से होती है. Doesn't have to be real. It's just an ideal gas. First thing we say is that gases are made of small particles in constant random motion. This is kinetic theory. Random motion है, Brownian motion है. Constant means it's not stopping. If it stops, that is 0 Kelvin. That is why you can't have a temperature lower than that. What does temperature have to do with it? Turns out, average kinetic energy of particles is directly proportional to the temperature, provided the unit is Kelvin. So if you have 0 Kelvin, that means the temperature is 0, particles are average kinetic energy is 0. यानी कि वो रुक गए. So अब वो रुक ही गया तो उसके नीचे kinetic energy है ही नहीं, तो temperature क्या होगा? But any energy more than that brings the average higher than 0 is going to give us a temperature. And that's the second postulate. Of course, kinetic energy affects the motion. So the greater the temperature, greater the random motion. Third important idea that we have for this is that collisions are elastic. For that, we have to go back to a chapter in physics on momentum. That what exactly are elastic collisions? So in any collision, we know that momentum is conserved. No matter what kind of collision, momentum is always conserved. What is not conserved is maybe kinetic energy. Again, energy as a whole is always conserved. But kinetic energy doesn't have to be. Kinetic energy का मतलब है कि उसकी energy loss 0 है. अगर kinetic energy converged है, conserved है, that means the energy loss is 0. It's not going into heat, it's not going into sound, it's not going into any other form of energy. It is just staying there. And that means the collisions are elastic. So loss nahi hai uske andar. And third, pressure comes from collisions between these particles and container. So these collisions between the particles are elastic, sure, but agar wo container se collide karega to usse hame pressure feel hoega, and we can measure that. And here comes the very, very important thing. The volume of molecules or particles
is much less or much smaller than the volume of gas. कहना क्या चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि the gas volume comes from how far the particles are, not how big the particles are. So gas is nothing but a way of figuring out कि particles कितना दूर हैं एक दूसरे से, और जितना दूर होंगे उसकी वजह से वो distances उनके इतने ज्यादा हैं कि volume of the particle itself, जो उसका अपना size है, it doesn't matter. Basically, I'm saying the particle is insanely small. And lastly, there is no force of attraction. इसका मतलब ये है कि we are treating the particle as a point. हम नहीं कह रहे कि उसके न्यूक्लियस की दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से कोई अट्रैक्शन, कोई इंड्यूस्ड डाइपोल नहीं है उसमें, क्योंकि अगर इंड्यूस्ड डाइपोल होंगे ना तो अट्रैक्शन होगी तो वो स्लो डाउन करेंगे, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल होता है. Each of these is related to each other, and all of this are called the basic postulates of kinetic theory. The more important ones I'll tell you. This one is obviously a given. This one is related to लास्ट वाला जो है वो उसके लिए गैसेस के लिए है. या हम आइडियल गैस की बात करें. ठीक है सर. ठीक है, आइडियल गैस ये वो ऐसी गैस है कि जिसकी बेस पे हम बाकी सबको समझने की कोशिश करेंगे, बाकी सब इससे आगे चलेंगे. ओके सर. अब इस आइडियल गैस में ना 4 चीजें हैं: प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, number of moles, and temperature. Volume is distances between the particles. Pressure is collisions between the particles and the container. Temperature is the average kinetic energy of the particles. ये 4 चीजें मिलके इसका बिहेवियर डिटरमिन करेंगी. सो हम चारों को इकट्ठा नहीं लेते, हम एक काम करते हैं, हम दो दो करके देखते हैं. What happens if I keep this as constant? वो जितना है उतना फिक्स कर देता हूं और मैं प्रेशर और वॉल्यूम को देखता हूं. Turns out Boyle's law tells me that pressure and volume will always multiply to give me one number. P times V is always the same. In other words, अगर मेरे पास कोई भी सिचुएशन है, मैं उसमें प्रेशर और वॉल्यूम रखता हूं कुछ P1 V1, number 1 situation, and the second situation P2 V2 will be the same, the third situation P3 V3 will be the same, P4 V4 will be the same. No matter what I do, मैं गैस लेता हूं, उस गैस को एक्सपैंड करता हूं, उसका प्रेशर उससे मल्टीप्लाई करता हूं. Before expansion, the pressure times volume is the same as after expansion pressure time. This is Boyle's law. It tells me that if I have volume and pressure, तो वो ऐसे होंगे, इनवर्सली रिलेटेड होंगे. जी सर. तो इसका ग्राफ बनेगा, वॉल्यूम इधर या प्रेशर इधर, वॉल्यूम इधर, तो ऐसे बनेगा ग्राफ. इसका मतलब है कि अगर मैं वॉल्यूम इधर और 1 ओवर प्रेशर ऐसे रखता हूं तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, 0 में से गुजरेगी. ठीक है, ये दोनों इसके ग्राफ्स हैं. अच्छा, दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ सेज आप प्रेशर फिक्स कर दें, आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स कर दें, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर will always divide to give you a fixed number, because volume is directly proportional to temperature. यानी कि volume over temperature is always a fixed number. यानी कि V1 over T1 is equal to V2 over T2. ये कहाँ पे यूज होता है? एक बलून है, आप उसको हीट करना शुरू करो, वो एक्सपैंड करना शुरू कर देगा. आपने उसे फटने नहीं देना, ऑब्वियसली प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड नहीं होने देना, बट आप उसको हीट करो वो एक्सपैंड करेगा, आप उसे कूल करो वो रिलैक्स करेगा, वो क्लोज आता जाएगा. रियली रियली सिंपल. चार्ल्स लॉ. दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन इन लाइफ. और इसका ग्राफ कैसे होगा? आपके पास अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर ऐसे हैं, सो विल बी अ स्ट्रेट लाइन थ्रू दैट. नोटिस के वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड थे तो 1 ओवर P में स्ट्रेट लाइन है. वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड तो स्ट्रेट लाइन है डायरेक्ट. The next law that we have
Avogadro's law. Avogadro's law says आप pressure fix कर दें, आप temperature fix कर दें. Volume is directly proportional to number of particles. जितने particles होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम होगी, वो उतने दूर एक दूसरे से जाएंगे. और अगर आप नंबर ऑफ मोल फिक्स कर देंगे तो वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ मोल 1 है तो वॉल्यूम 24. ये 24 तो ओले उसमें पड़ा हुआ है ना? जी सर, पढ़ा हुआ है. हाँ. एंड लास्ट वन दैट वी हैव इज गी-लुसाक्स लॉ, और वो कहता है कि वॉल्यूम और कौन सा रहेगा, प्रेशर और टेम्परेचर. प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा करोगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, कोलाइड ज्यादा करेंगे, प्रेशर ज्यादा होगा. Really simple stuff. But to bring all of this together, let's see क्या क्या है हमारे पास. P1 V1 एक फिक्स नंबर है, V over T एक फिक्स नंबर है, V और number of moles एक फिक्स नंबर है. तो let me bring all of it together. प्रेशर और वॉल्यूम मल्टीप्लाई होकर कुछ देते हैं, और वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड है, और नंबर ऑफ मोल्स भी डायरेक्टली रिलेटेड है उसके. तो आई जस्ट पुट नंबर ऑफ मोल हियर, टेम्परेचर हियर. This N is number of moles, this T is temperature, the P and the volume there, and this K we call it R. इसका नाम है, और ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन बन गई. PV equals nRT, and R is 8.31 जूल per mole per Kelvin. यूनिट चेंज करेंगे, वैल्यू चेंज हो जाएगी. And this is in SI units. Very important. This equation should always be used in SI units. ठीक है. एग्जामिनर इसको कैसे टेस्ट करता है? एक तो वो डायरेक्ट पूछता है ना. दूसरा, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई एमआर कैलकुलेट कर सकते हो आप गैस का? बिल्कुल कर सकते हैं. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकल आएगा. Basically, we moved this here. And then, number of moles is what? Mass over MR. So, MR यहाँ से calculate कर लेंगे, अगर mass given होगा. The key is you make sure that every value you put is in SI units. Let's do a question. Let's say we have ammonia gas. वो कहते हैं ammonia at 60 degrees Celsius and 103 kilopascals has volume of 5.37 decimeter cubed. What is the mass of ammonia? Okay, let's see. First of all, I need P, V, N, T. N is not given. M over MR हो सकता है, और MR है 17. T is 60 degree Celsius. मुझे केल्विन में चाहिए, तो 60 plus 273. तो 313. वॉल्यूम 5.37 डेसीमीटर क्यूब है, मुझे मीटर क्यूब में चाहिए, ऐसा यूनिट्स में चाहिए. I'll divide by 1000, so 0.00537 मीटर क्यूब. प्रेशर पैस्कल्स में चाहिए, ओके, है 103,000. ठीक है जी. Now I'll put all of this together. ठीक है. Make sure your unit conversion is there. PV equals nRT, 103,000 times 0.00537 is equal to M over 17 times 8.31 times 313. I'll solve this equation, I'll get my answer. बहुत आसान है. Yes sir. So that is ideal gas law. और ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि देखें
गैस के पार्टिकल्स छोटे से हैं, उनके डिस्टेंसेस बहुत बड़े हैं, वो इलास्टिकली कोलाइड करते हैं, कोई हीट लॉस नहीं करते, उनकी कोलिजन्स इलास्टिक होती हैं, उससे हमें प्रेशर पता चलता है, और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है। तो जब वो ये करते हैं तो उनसे जो प्रेशर बिल्ड होता है वो कैसे बिल्ड होता है? इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पार्टिकल्स यू हैव ऑफ दैट गैस। तो अगर मेरे पास एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, देन द प्रेशर is going to be a sum of individual gas particles pressure, और इसको हम बोलते हैं partial pressure. Total pressure is sum of partial pressures. Partial pressure क्या होता है? And this thing, by the way, is called Dalton's law. So Dalton's law ये कहता है कि अगर हवा में 80% ऑक्सीजन है तो you will simply take that, और अगर हवा 80% नाइट्रोजन है तो हवा का प्रेशर भी 80% नाइट्रोजन की वजह से। If the 21% या 20% ऑक्सीजन is there, तो 20% प्रेशर भी ऑक्सीजन की वजह से। तो जितनी किसी गैस की कंट्रीब्यूशन इन टोटल है, उतना ही उसकी कंट्रीब्यूशन टू प्रेशर भी है। सर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, मेरे ऊपर वाली लाइन लिखनी है बस सर, सही है। So it basically tells me you take the total pressure. So it's kind of like फिजिक्स में हम जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ते थे सीरीज सर्किट में, कि voltage of one compared to the total voltage is equal to resistance of one divided by total resistance. It's exactly like this. That pressure of one gas divided by the total pressure is same as number of one gas divided by the total moles. This part is called mole fraction, and this is called partial pressure. And based on this, we can easily figure out कि कोई गैस कैसा बिहेव करेगी, जो उसका पार्शियल प्रेशर कैसा होगा। मोल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आता कहां से? मतलब why does it work? It works because moles is all about how many particles you have, which means how many collisions they do. ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, ज्यादा कोलिजन होती हैं। ठीक है ना? ठीक है। बिलावल भुट्टो ने हमें बताया है। सो पार्टिकल्स होंगे तो कोलिजन होंगी तो उससे प्रेशर क्रिएट होगा। ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, ज्यादा कोलिजन होगी, ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। So just like that over here, moles is a measure of how many particles you have, and that obviously leads to the pressure from that gas, and that is why this works. So all we need to figure out कि अच्छा इस गैस का प्रेशर में क्या कंट्रीब्यूशन है, you simply look at कि अच्छा इस गैस से कितने मोल फ्रैक्शन है, इसकी टोटल मोल्स में से इसके पार्टिकल्स कितने, that's all that matters. Now the last thing in ideal gases, and it's a really short chapter, is कि रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह क्यों नहीं होती। आइडियल गैस में और रियल गैस में फर्क क्या है, या आइडियल गैस एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकती? फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडियल गैस कहती है कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है ना? एंड पार्टिकल साइज is negligible compared to the total volume. कि भाई पार्टिकल्स का आपस का डिस्टेंस मैटर करता है, उसकी वॉल्यूम में पार्टिकल का अपना साइज मैटर नहीं करता। पहली बात, रियल गैसेस हैव वैन डर वाल्स फोर्सेस। These van der Waals forces pull the particles together. अब उसकी वजह से होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्पैक्ट ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। नंबर वन, particles are pulled closer, so volume is less than ideal gas. Second, because वो उनको पुल कर रहे हैं तो उनकी वजह से collisions are sticky.
एक मॉलिक्यूल दूसरे के करीब आएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ स्टिक करने की कोशिश करेंगे, वो उसको छोड़ेगा नहीं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बिल्ड होगी ना, और कोलिजन इलास्टिक रहेगी ही नहीं. एंड थर्ड, एट लो वॉल्यूम size of particles matters. अगर वॉल्यूम बहुत कम है तो पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के कंपेयर टू द पार्टिकल साइज, कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, पार्टिकल का साइज मैटर करता है. इट्स नॉट नेग्लिजिबल. And collisions are sticky, especially when they're moving slowly, especially at low speeds, यानी कि low temperature. Three impacts of van der Waals forces. सारी आइडियल गैस थ्योरी उड़ा के बाहर फेंक दी. सर मुझे थर्ड वाली पॉइंट की समझ नहीं आई. देखो, ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं लोग, 22 people compared to the full football ground. They can all run, they can all move around, जो भी वो करना चाहें वो कर सकते हैं. There is enough space between them. बट उन्हीं 22 people को तुम बास्केटबॉल कोर्ट में डाल दो, सर मतलब फिर भागने की इतनी जगह नहीं है. जगह ही नहीं है, रश पड़ जाएगा. अब वहां पे आपको तुम भागते क्यों नहीं? अगला बंदा कहेगा भाई जगह ही नहीं है. बिकॉज वही 22 people in a larger space make up less volume or the total. But in a smaller space they matter. उनकी individual volume matter करती है. So ऐसे ही these particles वो individually बहुत छोटे छोटे हैं. तो अगर आप एक गैस को हवा में देखते हो, एक रूम में देखते हो कि उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो पार्टिकल्स इतने दूर दूर हैं और उनके आपस के डिस्टेंस इतने बड़े हैं कि उनके अपना साइज मैटर नहीं करता. बट उन्हीं को आप स्टिक करके एक छोटे से बॉक्स में डाल दो, छोटे से सिलेंडर में डाल दो, सिरिंज में डाल दो, so then their individual size might matter more, and it can matter to such an extent कि उनके डिस्टेंस इतने स्मॉल हो जाएंगे कि वो मेल्ट कर जाएगा, वो कंडेंस कर जाएगा. अगर पार्टिकल्स को बहुत क्लोज ले आओगे और उनके डिस्टेंसेस कम करते ही जाओगे तो एक टाइम आएगा कि उनकी अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो लिक्विड बन जाएगा. आपको कूल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. यू जस्ट हैव टू ब्रिंग देम क्लोज टू ईच अदर. ऑटोमेटिकली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनेगी, गैस खत्म, कंडेंस हो जाएगी. आइडियल गैस में कभी ऐसा नहीं होगा. आइडियल गैस में फोर्स है ही नहीं, तो जितना मर्जी करीब आते जाए, ना उसने कभी सॉलिड बनना है ना उसने कभी लिक्विड बनना है. फोर्स तो है ही नहीं ना. बट रियल गैसेस में ऐसा नहीं होता है. यू ब्रिंग देम क्लोज टुगेदर, वो और करीब रहते हैं, उनकी फोर्सेस उनको और जाने से रोकती हैं. एंड इट हैपन्स मोर व्हेन दे हैव लो काइनेटिक एनर्जी. जब काइनेटिक एनर्जी कम है तो एक मॉलिक्यूल के लिए दूसरे को अट्रैक्ट करना आसान है. जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वो तो जितनी देर में उसने अट्रैक्ट करना है वो आगे भाग जाएगा. इट विल मूव अवे. एंड दैट इज व्हाई एट लो टेम्परेचर collisions are more sticky. So ideal gas behavior बिल्कुल ही खत्म हो जाता है. सिमिलरली अगर बहुत हाई प्रेशर होगा तो कोलिशन बहुत ज्यादा होंगी, और जब बहुत ज्यादा कोलिशन होंगी तो ऑब्वियसली उनकी जो अट्रैक्शन है वो मैटर ज्यादा करेगी. सो जब भी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है या वॉल्यूम बहुत टेम्परेचर बहुत कम होता है, आइडियल गैस लॉज बिल्कुल भी फॉलो नहीं होते. लेकिन ठीक है सर, सही है. अगर आप उसको मॉडरेट लेवल में रखो तो वो आइडियल गैस बिहेवियर को अप्रोच करती है. और आप ऑपोजिट एक्सट्रीम पे चले हो, यू गिव देम सो हाई एनर्जी कि वो इतनी रैपिडली मूव कर रहे हैं कि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पकड़ ही नहीं सकती, तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैटर नहीं कर रही ना. नेग्लिजिबल वही चीज है जो मैटर नहीं करती. सो इफ दे आर मूविंग वेरी फास्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल नॉट मैटर. सिमिलरली if they are not colliding at all, collide कर ही नहीं रहे, तो collision
ऑटोमेटिकली इलास्टिक होगी ना, क्योंकि होनी ही नहीं। तो उसको इतना दूर कर दो, इतना कम प्रेशर कर दो उसका कि वो कोलाइड ही ना करे। जो कोलाइड ही नहीं करेगा तो आइडियल गैस बिहेवियर करेगा। सो आइडियल गैस बिहेवियर, रियल गैसेस, व्हेन डू दे एग्जिबिट? व्हेन दे हैव हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर। लो प्रेशर से कोलिजन ही नहीं होनी, हाई टेम्परेचर से वो करीब आया भी तो उसे पकड़ा नहीं जाना, वो इतनी तेज से मूव करेगा। एंड रियल गैस कब बिहेव ज्यादा करती है? व्हेन इट हैज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्लियर? यस सर, क्लियर। तो इसका मतलब है कोई भी गैस जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वो आइडियल गैस से उतना ही दूर है। सो हीलियम में वैन डर वाल्स फोर्सेस आर वीकर, हाइड्रोजन में वैन डर वाल्स फोर्सेस आर वीकर, दे आर एक्सीलेंट आइडियल गैस बिहेवियर। बट अमोनिया में यू हैव डाइपोल्स, जिसकी वजह से वो नहीं करता आइडियल गैस बिहेवियर बहुत ज्यादा शो। HCl में और कम है, वाटर स्टीम में और कम है। क्यों? स्टीम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आइडियल गैस से उसका बिहेवियर और डिविएट करता है। सो द स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the greater the deviation from ideal gas behavior. This is the last point. The stronger the force of attraction, stronger van der Waals forces mean greater deviation from ideal gas behavior. Okay? जी सर, हो गया। Perfect. All right. Take care. Love.